आपको ये समझना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो 3 मेजर डिसीजंस हैं, जिस पर आप ये मानिए पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस, कंपनी की फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी के शेयर प्राइसेस, स्टेक होल्डर्स का रिस्पॉन्स बेस्ड होता है। तो वो 3 बातें क्या-क्या होती हैं? पहली बात होती है कि आप पैसा प्रोक्योर कहाँ से कर रहे हो। सो योर फाइनेंसिंग डिसीजन और प्रोक्योरमेंट डिसीजन, वी नो दैट। द सेकंड वन इज whatever you have procured, where are you investing it exactly? Right place of investment result in improvement of wealth. Wrong place of investment results in erosion of wealth. So where are you investing? And the third very important decision is dividend decision, that out of whatever you have earned, whatever is the earning, how much you are planning to distribute and how much you are planning to retain. Are you planning to distribute full? You are planning to distribute nothing, or certain percentage you are distributing and certain percentage you are retaining for expansion of your business and meeting your own requirements. So this decision is again a very, very prominent decision, and we need to study about this in this complete chapter. Is that fine? Okay, चलिए. So we begin noting. हेडिंग डालो आप जाके, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन. लिखना स्टार्ट करो उसमें. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस. Financial management is the process of making financial decisions so as to increase the value of firm. So as to increase value of firm. So as to increase value of firm. So you can mark these 3 important things. FM का aim is what? कि overall firm की value बढ़े. आप कह सकते हैं share prices market में basically increase हो जाएं. That's the ultimate aim. That's the ultimate goal. All right. लिखो आप, long-term finance function decision broadly covers 3 areas. Long-term finance function decisions broadly cover 3 areas. Long-term finance function decisions broadly cover 3 areas. The first we know is the financing decision, which should be there, rooted in you. That financing means arranging of funds. So what all chapters we have for understanding this part, you kahin na kahin have working capital management also, where we plan कि यार फंड से रिलेटेड कहाँ से कितना हम अरेंज कर रहे हैं, उधर भी ये डिस्कस कर रहे होते हैं. उसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात की जाए तो कौन सा महंगा पड़ रहा है, कौन सा सस्ता पड़ रहा है. लेवरेज की बात की जाए तो यही बात आती है. कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यही बात आती है. तो दे आर ऑल फोकस्ड ऑन फाइनेंसिंग. नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Investment decision. Now this investment decision is covering what? It is covering your chapter investment decision. Also it's covering your working capital. एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग दोनों से ही कनेक्टेड है. उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा, विच इज योर डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन. Okay, so go and give the heading dividend decision. Dividend decision. Okay, I hope everybody is fully energetic. Dividend decision, लिखो उसमें आप, how much to be distributed in the form of dividend. How much to be distributed in the form of dividend. How much to be distributed in the form of dividend. And how much to be retained by company. And how much to be retained by company. कितना बांट देंगे और कितना रिटेन करना प्लान कर रहा है. रिटेन करना मतलब रोक के रखना, नहीं बांटेंगे इतना पोर्शन. तो how much
to be distributed in the form of dividend and how much to be retained by company. तो उसमें you can go and write जो EPS होता है, earning per share, जो EPS होता है, that's your earning per share, उसके दो टुकड़े होते हैं. आपको पता है ये बात, रेशियो चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं. there is a DPS, dividend per share, and then we have retained earnings. Then we have retained earnings. आपको याद हो पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है रिटेन्ड अर्निंग्स को ऐसे बी करके रिप्रेजेंट करते हैं. आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर दिस और नॉट. एक आधी कहीं जगह पे आया था, तो इट्स रिप्रेजेंटेड वाया बी, so that indicates retained earning. हो गई ये बात आपकी. चलिए, अगर मैं कहूँ आपसे retained earning है 70%, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना प्रतिशत होगा? 30% ऑटोमेटिकली. ट्रू. अगर मैं कहूँ 100% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, रिटेन्ड अर्निंग क्या होने वाली है? 0. अगर आपकी रिटेन्ड अर्निंग 100% है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 0. सो दैट्स हाउ इट गोस. ओके, चलिए आगे लिखिए जाके सेकेंड हेडिंग, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड. फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड. फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड. फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड. पहला लिखेंगे कैश डिविडेंड. कैश डिविडेंड. दूसरा लिखेंगे आप शेयर रीपरचेज. शेयर रीपरचेज. Next, bonus issue. Bonus issue. The first is cash dividend, share repurchase or bonus issue. Okay? नाम नोट कर दिया आप. अब हमारे पास तीन फॉर्म है डिविडेंड के. सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट कैश डिविडेंड, आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज द मीनिंग? मुझे बताओ एक बार तो. कैश डिविडेंड इज व्हाट? कैश डिविडेंड इज कैश डिविडेंड. बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया उनका, जो भी निकल के आ रहा है, 2 रुपए पर शेयर, 5 रुपए पर शेयर, 10 रुपए पर शेयर, वट. तो उसके नीचे आप लिख दीजिए पेड. पेड in the form of paid in the form of cash, मतलब basically not cash but transfer in bank account, right? कॉमा करके लिख दो आप. transfer to bank account of shareholder. That's it. Okay, come to the next one, which is your share repurchase. उसके नीचे जाके आप लिखो, it is a transaction in which company buys back its own shares. It is a transaction where company buys back its own shares using corporate cash. कंपनी का पैसा यूज करके शेयर्स वापस खरीद लिए. It is a transaction in which company buys back its own shares using corporate cash. Using corporate cash. ठीक है, आगे लिखो. The bought back shares. The bought back shares. The bought back shares may be. The bought back shares may be. Next line में लिखिए kept for a reissuance in future. May be kept for a reissuance in future. Or cancelled. Or cancelled. Or it may be cancelled.
So they can be reissued in future or they may be cancelled. That's done, you inform. आपको बाय बैक तो समझ में आता है? वी हैव स्टडीड दैट इन अकाउंट्स. जब हम बाय बैक की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली जो टर्म है वो इंडियन कंटेक्स्ट में आ जाता है. इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर आ जाता है टर्म बाय बैक. और बाय बैक किस हिसाब से चलता है? कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग जो भी अलाउंसेस डिसअलाउंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है. बट जब आप एफएम पढ़ रहे होते हैं तो मैं मल्टीपल टाइम्स कह चुकी हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ, यू आर नॉट स्टडिंग इंडियन एफएम, यू आर स्टडिंग एफएम विच इज ग्लोबल. तो यहाँ जब वो शेयर रीपर्चेज की बात कर रहे हैं तो बाय बैक जब किया जाता है तो बेसिकली शेयर्स कैंसिल कर दिए जाते हैं. बट अगर इंटरनेशनल बात की जाए तो इन लॉट ऑफ कंट्रीज इट मे बी अलाउड कि आप उसको क्या कर सकते हो, आपने खरीद के रख लिया, कल को आपको लगे तो आपने वापस से रीइशू कर दिया. तो इसीलिए इसके दो यूजेस हैं, एक रीइशुएंस और एक क्या होता है कैंसिलेशन. तो यू ऑल नो कि उसको खत्म ही कर दिया तो वो शेयर कैपिटल से ही हट जाएगा. इसको भी डिविडेंड का ही एक रूप माना गया है. बिकॉज पैसा हमने डिविडेंड नाम से भले ही ना दिया हो, लेकिन उनको हमने तो लमसम पैसा दे दिया पूरे शेयर के ही बराबर. सो दे अल्टीमेटली गॉट मनी इन सम फॉर्म. आर यू गेटिंग दैट? तो इसको भी किसमें मान लिया गया है? दैट्स आल्सो कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तीसरे पे आ जाओ आप, बोनस इशू. बोनस इशू. बोनस इशू ड्रॉ करो अपनी बैलेंस शीट. ड्रॉ करिए अपनी बैलेंस शीट. इसमें अपने लाइबिलिटी साइड जो रिजर्व्स हैं, लाइबिलिटी साइड जो रिजर्व्स हैं उसमें से उठा के बोनस दे दिया जाता है टू शेयर होल्डर्स. बोनस दे दिया जाता है टू शेयर होल्डर्स. और ऐसा कब जनरली करा जाता है? जनरली व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ कैश. देयर कैन बी सर्टेन अदर रीजंस आल्सो, बट जनरली कैश. तो कैश इसमें आपका जाएगा नहीं, कैश आउटफ्लो कंपनी का होगा नहीं. शॉर्टेज ऑफ कैश भी कह सकते हैं, और यू हैव सम अदर यूज ऑफ कैश. यू आर प्लानिंग टू यूज इट फॉर सर्टेन परचेजेस, तो यू वांट टू कीप योर कैश इंटैक्ट. ठीक है, तो हम कैश को नहीं कम करना चाह रहे हैं, तो कैश इसमें नहीं जाएगा. डिविडेंड तो एक तरीके से जा रहा है, यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ बेनिफिट टू द शेयर होल्डर. तो आपने इनको जैसे ही शेयर्स दे दिए तो नाउ दे हैव समथिंग मोर, एंड मार्केट में दे कैन सेल ऑफ दीज एंड गेट सम मनी आउट ऑफ इट. So it's also considered as a form of dividend. So how many overall? Three. One is cash, one is share repurchase, and the third one is bonus issue. Done? चलिए आ जाइए आप आगे. थर्ड हेडिंग डालो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन. डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स मतलब डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे वो किन किन बातों पर आश्रित है, किन किन बातों पर बेस्ड है. हम डिविडेंड, कैश डिविडेंड की बेसिकली बात हो रही है. हम डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे ये डिसीजन हम किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद लेने वाले हैं. सो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द पॉइंट्स बेस्ड ऑन व्हिच यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन दैट शुड वी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड और नॉट. ओके. So to begin with, write down the first one. You can make a chart if you want. Overall, these are like 7 points. So you can make 7 branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सब में दो दो लाइन लिखनी है. तो पांच पांच बना सकते हो. You can make 7 branches. Write the first 3 names. Do let me know and then I'll change the slide. तुम लोग के कोई फ्रेंड्स तो होंगे जो और भी कुछ हो और इंटर की पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग और लोगों से कनेक्टेड? उनकी पढ़ाई की कैसी कैसी पोजीशन है जब वो बात करते हैं तुमसे? Are they very confident or they are worried or they are over worried? I don't know what is the condition. बच्चों का तो एक दूसरे से मिलना होता ही है तो अपने को आइडिया होता है that what is the position. अच्छा. ग्रेजुएशन एंजॉय कर रहे हैं.
रिकॉर्डेड कवर करने का टेंशन है। वरीड। सिलेबस हो गया, सेल्फ बचा है सबका। क्या लिखा पहला पॉइंट अपन ने? अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। सेकंड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हैंड। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हैंड। चौथा लिखो ट्रेंड इन इंडस्ट्री, मार्केट में क्या चल रहा है। ट्रेंड इन इंडस्ट्री, मार्केट में क्या चल रहा है। अगला एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। उसके बाद लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट्स, लॉ क्या किसी चीज पर रुकावट लगा रहा है। और उसके बाद टैक्सेशन। टैक्सेशन। So these make how many points? 7 points. Done with the heading. समझना स्टार्ट करें हम। हेडिंग आपको क्लियर है? मेन हेडिंग क्या बोल रही है? आप डिविडेंड बांटोगे या डिविडेंड नहीं बांटोगे, ये डिसीजन लेना कितनी बातों पर डिपेंडेंट है? 7 बातों पर। हाउ मेनी? 7। व्हाट इज द फर्स्ट वन? अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और बात को समझिए। अगर आपके पास ह्यूज कैश अवेलेबल है तो आप आराम से डिविडेंड बांट सकते हो। बट अगर आपके पास कैश क्रंच है, आपके पास कैश की कमी है, आपके पास या उतना ही बस कैश है जिससे आपके जो रूटीन खर्चे हैं वो मीट हो सके, तो ऐसे सिचुएशन में जनरली कैश डिविडेंड नहीं दिया जाता। और अगर प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो बोनस बोनस दे देंगे, बट कैश डिविडेंड नहीं देंगे अगर कैश की कमी है। और बहुत सारा है तो बांट देंगे। तो आप नीचे लिख दीजिए इसके जाके ऐसे ही कि कैश अगर है तो डिविडेंड दे देंगे, और अगर कैश नहीं है, नहीं होना मतलब कम है, नॉट सफिशिएंट, तो फिर कैश डिविडेंड नहीं देंगे। कैश अगर है तो डिविडेंड दे देंगे, और अगर कैश नहीं है तो कैश डिविडेंड नहीं देंगे। ओके, अगले पॉइंट पे आ जाओ आप, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इस बात को वापस समझें हम। अगर एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि यार हमको डिविडेंड बांटना है तो चलो कहीं से हम फंड्स अरेंज कर लें, कहीं से हम क्या करें, फंड्स अरेंज कर लें। तो सुनना गौर से, अगर वो महंगा पैसा होगा, महंगा पैसा मतलब काफी सारा इंटरेस्ट उसके ऊपर देना पड़ जाएगा, तो ऐसे केस में वी विल अवॉइड के यार पहले तो लोन लो, उसके ऊपर इतना सारा इंटरेस्ट दो, फिर डिविडेंड दे पाएंगे, तो बेहतर ही रहने दो। लेकिन अगर सस्ता पैसा मिल जा रहा है, सस्ता पैसा, तो फिर हम आराम से दे सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही जा रहा है, बाकी तो ये कि कम से कम वी हैव अ पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट कि इन्होंने इतना सारा डिविडेंड बांटा हुआ है करके। तो क्या बात आ रही है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, महंगा पड़ रहा है या सस्ता। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, फंड्स रिक्वायर्ड, तो आपके पास डेट आप ले सकते हो, डेट यू कैन टेक, बट यू हैव टू चेक आउट कि भाई कॉस्ट ऑफ डेट कितनी पड़ रही है। अदर देन दैट, अगर आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है पहले से मौजूद, तो ठीक है चलो तो भी बांट देंगे। लेकिन अगर एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो फिर नहीं बांट पाएंगे। तो यहाँ पे आप एक बार मेरे साथ एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे, फिर अपन कॉपी में शॉर्ट में नोट कर लेंगे। वेयर इज इट? इट्स है, पढ़िए। If financing requirements are to be executed through debt, then it would be preferable to distribute more dividend. On the other hand,
इफ फाइनेंसिंग इज टू बी डन थ्रू, जो पैसा आपको अरेंज करना पड़ेगा, इट इज डन थ्रू इक्विटी, मतलब कुल मिला के महंगा पैसा है, देन इट इज बेटर टू रिटेन अर्निंग एज मच एज पॉसिबल। तो इतने महंगा देना उससे बेहतर है ना दो आप। आगे मेरी बात समझ। अगर सस्ता मिल पा रहा है तो आप अरेंज कर सकते हो फंड्स और डिविडेंड बांट सकते हो, बट अगर महंगा पड़ रहा है तो बेहतर है कि आप डिविडेंड ना बांटें, बिकॉज कंपनी पे ह्यूज कॉस्ट आ जाएगी। ऑल राइट, चलो लिखो जाके नीचे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहाँ लिखा है उसके आप नीचे लिखेंगे इफ फंड्स आर if funds are arranged through cheaper source of finance, if funds are arranged through cheaper source of finance, bracket में you can write debt. If funds are if funds are arranged through cheaper source of finance, bracket में you can write debt, तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप, डिविडेंड बांट दो, डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सस्ते में चलो पैसा मिल गया आपको। और उसके बाद लिखिए अदरवाइज, अगर अदरवाइज सिचुएशन है, अदरवाइज मतलब क्या आ जाता है इसमें, इक्विटी, और अदरवाइज क्या आ जाता है, प्रेफरेंस, महंगा पैसा, तो फिर बेहतर है कि आप डिविडेंड ना बांटें, लेट इट बी, लेट इट बी, मत बांटिए आप डिविडेंड। डन। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हैंड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हैंड, तीसरा जो पॉइंट आपने लिखा है, दिमाग लगाएंगे सब। आपके पास अगर एक ऑप्शन है कि आप डिविडेंड बांट दो, और डिविडेंड बांट दोगे तो पैसा आपकी कंपनी का गया, दैट्स गॉन। दूसरी बात है उसी पैसे को आप किसी नई जगह पर इन्वेस्ट कर दो। क्या बोला मैंने आपसे, एक ऑप्शन है कि आप डिविडेंड बांट दो, डिविडेंड दे दोगे लोगों को, वो खा पी के बढ़े आएंगे, कहानी खत्म। दूसरा, आपने डिविडेंड नहीं दिया और उस पैसे को रख लिया क्योंकि आपको दिख रहा है कोई सामने कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पैसा लगा दूं अगर, तो बहुत ग्रोथ हो जाएगी कंपनी की, अच्छा एक्सपेंशन हो जाएगा, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो ये आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप डिविडेंड बांट दो, बट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी मौजूद है जिस पे रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, तो ऐसे केस में बेहतर है कि आप डिविडेंड ना बांटें और आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आ गई बात समझ में। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल इन हैंड। दो आप इसमें से करिए ब्रांचेस। पहला लिखो ऑप्शन वन, डिविडेंड। ऑप्शन वन, डिविडेंड कब बांटो, जब आपका ROI लो है। ROI का मतलब रिटर्न जो आपको मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिल रहा है, जहां पे पैसा लगाया है प्रोजेक्ट में, वो कम है, इट्स लो। सो योर इन्वेस्टमेंट के ऊपर फायदा, रिटर्न इज लो, तो बेहतर है इन्वेस्टमेंट ना करो और डिविडेंड बांट दो। ओके, बट अगला लिखो, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास और ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हाई है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, ROI जो है वो हाई है, अच्छा रिटर्न मिल रहा, तो ऐसे केस में डिविडेंड ना बांटे, ऐसे केस में डिविडेंड ना बांटे। डन। चल नेक्स्ट पे आ जाओ, ट्रेंड इन इंडस्ट्री। भाई आपको कई बार क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है, भले ही आपका मन हो या ना। अब आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो आपके सेगमेंट की कंपनीज है, आपकी इंडस्ट्री वाली जो भी दूसरी कंपनीज हैं, वो सारे के सारे डिविडेंड बांट रहे हैं। अब आप अगर डिविडेंड नहीं बांटोगे तो ऐसे करके यू आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड, तो यू नीड टू गो विथ द ट्रेंड। तो मार्केट में अगर सब डिविडेंड नहीं बांट रहा है और आप भी नहीं बांटो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और मार्केट में सब डिविडेंड बांट रहे हैं और आप ना बांटो,
तो एकदम से इम्पैक्ट आपकी कंपनी पे पड़ जाता है कि ऐसी क्या सिचुएशन है, क्या इनकी इतनी नहीं पोजीशन है कि डिविडेंड बांट सके। तो इसीलिए वी नीड टू गो विद द ट्रेंड एंड चेक आउट व्हाट अदर कंपनीज ऑफ द सेम इंडस्ट्री आर डूइंग। यू कैन फॉलो दैट, यू नीड टू रादर कीप दैट इन माइंड, ऐसा बोला जा सकता है। देखिए आप, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। उसमें लिखिए आप, इफ दे आर distributing, if they are distributing dividend, if they are distributing dividend, so we need to distribute, we need to distribute, we need to distribute, हमें बांटना पड़े। डू यू नो वाई, क्यों बांटना पड़ेगा? यू नीड टू रिमेन इन पावर विद अदर्स, अदरवाइज सब क्वेश्चन करने लगेंगे कि इनके पास इतना भी नहीं है कि इतना कर पाए, जब सब बांट रहे हैं। तो आपको उनके लाइन में चलना पड़ेगा, उनके साथ। और if they are not distributing, अगर वो नहीं बांट रहे हैं, फिर any decision can be taken, any decision can be taken, मतलब आप भी ना बांटो, चल जाएगा, कोई नहीं बांट रहा, हमने भी नहीं बांटा, और आप बांट भी दो तो भी चल जाएगा, बिकॉज ये तो अच्छी ही बात है ना बांट देना, तो उससे कंपनी का कोई नाम खराब तो हो नहीं जाएगा। तो एनी डिसीजन कैन बी टेकन। ठीक है, अगले पे आ जाओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। भाई ये बहुत मैटर करता है, लोगों की उम्मीद क्या है हमसे। अगर वो ये आस लगाए बैठे हैं कि डिविडेंड बटेगा और आप कह दो नहीं बटेगा, तो आप उनकी उम्मीदों को तोड़ दे रहे हैं। और जैसे ही मार्केट में शेयर होल्डर की उम्मीद टूटती है, तो शेयर प्राइसेस फटाक से गिर जाते हैं। तो आपको चेक करना है दैट व्हाट इज देयर एस्पिरेशन, व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन। इफ देयर एक्सपेक्टेशन इज कंपनी नहीं देगी, कंपनी हैज टू इन्वेस्ट समवेयर, तो ऐसे में ना तो चल गया। बट दे हैव एन एक्सपेक्टेशन कि यार कंपनी हर साल डिविडेंड बांटती है, एवरी ईयर इट्स कंसिस्टेंटली सिंस लाइक 10-20 years कि ये लोग हर साल डिविडेंड बांटते हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर आप नहीं बांटते डिविडेंड, तो इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर इमेज। ओके, तो आप उसमें लिखो, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को आपको चेक करना है उसकी एक्सपेक्टेशन। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन है कि डिविडेंड मिलना है, तो देन यू नीड टू गिव, देन यू नीड टू प्रोवाइड डिविडेंड। शेयर होल्डर की अगर एक्सपेक्टेशन है कि डिविडेंड मिलना है, तो आपको देना है। उसके बाद दूसरा लाइन में लिख लेना, अदरवाइज, अदरवाइज फिर वही बात, एनी डिसीजन में बी टेकन। अगर उनकी ऐसी उम्मीद नहीं है, फिर आप जो चाहे डिसीजन ले लो, बांट रहे हो बांट दो, नहीं बांट रहा है मत बांटो, फिर चल जाएगा। बट अगर उनकी एक्सपेक्टेशन है और नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन अगर है डिविडेंड, तो देना ही है। बट अगर शेयर होल्डर की अदरवाइज कोई बात है, दे डोंट हैव दैट एक्सपेक्टेशन, तो फिर आप कोई भी डिसीजन ले लो, एनी डिसीजन मे बी टेकन, एनी डिसीजन मे बी टेकन। ओके, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट कम टू लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट्स, अब वापस जब हम लीगल कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं, सो आर वी जस्ट कवरिंग इंडिया राइट नाउ? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ग्लोबली, इंटरनेशनली। कि किसी देश में हो सकता है गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया उनके लॉ में कि आप अपनी कमाई का कम से कम 20% सेव करोगे, तो आप नहीं बांट सकते पूरा, नहीं बांट सकते। या आपको अपने रिजर्व्स कम से कम 20% ऑफ शेयर कैपिटल मेंटेन करना है, तो अगर उतना नहीं है आपका, तो नहीं बांट सकते आप। तो अगर लॉ ने कोई रुकावट डाल दी है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है और फिर ही अपना डिसीजन लेना है, अपने मन से नहीं चल सकते। तो आप इसमें लिख दो कि लॉ ने अगर रिस्ट्रिक्ट किया है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कंसिडर, कंसिडर द लॉज ऑफ द लैंड, कंसिडर द लॉज ऑफ द लैंड। जिस जगह पे कंपनी है वहाँ क्या लॉ है वो कंसिडर करना पड़ेगा। Consider the laws of the land.
Okay, come to the last one, that is taxation. 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 सामने लिख देना बेटा उसमें DDT. DDT. So there's a tax called dividend distribution tax. What is it? Dividend distribution tax. Again, it varies from nation to nation. किसी में कुछ हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है. तो DDT, अरे, dividend distribution tax. So depends from country to country. The percentage may vary. Sometimes it may not be there. Sometimes it may be there. So wherever it is there, you need to consider it. क्या बोल रहा है? Who is liable to pay it? Of course, the company. A domestic company that pays dividend to its shareholders must pay tax on the dividend income called dividend distribution tax. DDT is 15% on the gross dividend amount as per section 115 O. तो इसमें क्या कहानी है कि भाई अगर 100% आपने प्लान किया कि हम 100 रुपए का डिविडेंड बांटेंगे, तो इसका सबसे पहले 15% आपको 15 रुपए गवर्नमेंट को दे देना है. अब बच रहा है 85, यही शेयर होल्डर के पास जाए. और इसी वजह से डिविडेंड इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इज टैक्स फ्री, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स एक तरीके से कौन दे चुका है? कंपनी पे कर चुकी है. तो भाई अगर इतना सारा पैसा, एक तो आपको खुद समझ में आना चाहिए क्या, आप जब पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो आता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उठा के स्ट्रेट अवे इतना बड़ा परसेंटेज टैक्स में जाता है. फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही होता है जो हम शेयर होल्डर में बांटते हैं. अब वो कहते हैं इसके ऊपर उठा के फिर से परसेंटेज दे दो. तो अगर ये परसेंटेज हमारे लिए बहुत ह्यूज जा रहा है, तो बेहतर है डिविडेंड मत बांटो. खुद भी ये बात सोचो कि आप डिविडेंड बांटने में 15% का और नुकसान कर ले रहे हो. इससे बेहतर है वो पूरा पैसा उठा के किसी सही जगह पे इन्वेस्ट कर दो, वहां से कुछ रिटर्न कम से कम आ जाएगा और कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे. तो क्या है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रेट, देश में क्या उससे रिलेटेड प्रोविजन है, उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड बांटोगे या नहीं बांटोगे. आ गया समझ में? जाके इसको भी नोट कर लो आप, डीडीटी. डीडीटी तो टैक्स, अगर पैसे इसमें कम जा रहे हैं देन इट्स फाइन, बट अगर ह्यूज जा रहे हैं तो देन डिविडेंड्स आर जनरली नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. Then dividends are generally not distributed. Done? चलो फटाफट से मुझे बताना स्टार्ट करो. अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कैश अगर ज्यादा अवेलेबल है तो डिविडेंड बांटा जाएगा या नहीं बांटा जाएगा? यस और नो? यस. कैश अगर कम है तो फिर, कैश कम है तो जनरली अवॉइड किया जाएगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने प्लान किया यार हमें डिविडेंड बांटना है, लेकिन वो उसके लिए पैसे नहीं है, तो हमने कहा चलो डेट उठा लेते हैं. तो डेट महंगा होता है या सस्ता सोर्स होता है? अगर ये सस्ता है, रेट कम जा रहा है, तो डिविडेंड बांट देंगे. लेकिन अगर महंगा सोर्स पड़ रहा है, ज्यादा जाना है, तो फिर नहीं बांटेंगे. उसके बाद आ रहा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज रियली वेरी हाई. शुड वी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड और नॉट? सोच के बताओ. वी हैव ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन हैंड which is giving a good return, very high return. Should we distribute dividend or not? No. Why will we distribute dividend when we have a good investment opportunity? We will invest there ना, we will not distribute in the form of dividend. कमाई तो उतनी है, डिविडेंड बांट दोगे तो फिर तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा ना. सोच के जवाब देना है, बिना सोचे नहीं देना है. चलिए, ट्रेंड इन इंडस्ट्री, द ट्रेंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग. देन व्हाट इज योर सजेशन? Nobody is distributing, that's the trend going on. What would be your suggestion? The suggestion would be you can do anything. You can do anything. Those who are saying do not distribute are giving wrong answer. You can do anything. Now you have that comfort कि देना है दे दो, नहीं देना नहीं दो. इससे बहुत हद तक कोई कंपनी के पे इम्पैक्ट नहीं पड़े. Expectation of shareholder, they expect dividend. Now what? They expect dividend. Now what? We need to distribute. Chale. Legal constraints are there, and the law of the land is such that you cannot distribute dividend anywhere like more than 20%. Then what?
then you can't distribute more than 20%. That's it. You have to abide by the laws of the land. ठीक है? अगर आपका डीडीटी हाई है तो ऐसे केस में कम से कम कंपनीज डिविडेंड बांटेंगी। अगर आपका डीडीटी कम है तो ज्यादा से ज्यादा कंपनीज डिविडेंड बांटते चलेंगे। चलिए चलिए आगे आ जाओ, अपने को डिस्कस करना है। हेडिंग लिखो नंबर 4, मेच्योर वर्सेस ग्रोथ कंपनीज। हाँ, ऐसा हो सकता है आराम से कि कंपनी के पास प्रॉफिट और कैश नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसी वजह से वहां पे पैसे बाहर से फिर अरेंज करने पड़ जाते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। बिकॉज अपन ने पढ़ा है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट से तो इतनी क्लैरिटी अपने को आई जाती है कि जो प्रॉफिट दिख रहा है उतना थोड़ी ना कैश होता। देयर आर लॉट ऑफ नॉन कैश एलिमेंट्स देयर। तो हेडिंग नंबर 4, मेच्योर वर्सेस ग्रोथ कंपनी। मेच्योर वर्सेस ग्रोथ कंपनी। दो आप ऐसे टेबल बना लो, दो कॉलम्स हो जाएंगे। एक में लिखो मेच्योर कंपनीज, एक में लिखो आप ग्रोथ कंपनीज। मेच्योर कंपनीज एंड ग्रोथ कंपनीज। मेच्योर कंपनीज और ग्रोथ कंपनी। चलो मेच्योर कंपनी में लिखना स्टार्ट करो। मेच्योर कंपनीज हैव फ्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मेच्योर कंपनीज हैव फ्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, नाम से समझ में आ रहा होगा, दे हैव रीच्ड टॉप, दे हैव रीच्ड टॉप। जैसे अपन वो नहीं पढ़ते एसएमए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी, कि दे हैव 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, सो देयर इज वन कॉल्ड मैच्योरिटी एंड दैट्स द हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद तो नीचे ही जाना है। तो ऐसे ही कंपनी जो है वो कहाँ जा चुकी है अपनी मेच्योरिटी स्टेज पे। दे हैव ऑलरेडी आई मीन डन द बेस्ट पॉसिबल। अब ये टॉप मोस्ट पर है, इसके ऊपर कहीं जा पाएंगे, बहुत ही कम, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वो इतने सारे प्रोडक्ट्स में घुस चुके हैं, इतने सारे मार्केट्स में जा चुके हैं। तो मेच्योर कंपनी हैव फ्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वो नई जगहों पे ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे विल शो हाई पे आउट रेशियोज, हाई पे आउट रेशियोज, सो दे विल बी गिविंग मोर एंड मोर डिविडेंड। जो पैसा बचा है उन्हें कहीं इन्वेस्ट करना है, सो दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट, सो दे विल शो हाउ हाई पे आउट रेशियोज, हाई पे आउट रेशियोज। ग्रोथ में लिखो लो पे आउट रेशियोज, low payout ratios because they are growth companies, they have so many things to do right now। तो यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, तो फिर वो क्यों ही डिविडेंड बांट के अपनी ग्रोथ को रोकेंगे। so they have low payout ratios, they have low payout ratios। डन। चलिए नेक्स्ट पे आओ, मेच्योर कंपनी पे। उसमें शेयर प्राइजेस आर सेंसिटिव टू एनी चेंज इन डिविडेंड पे आउट। शेयर प्राइजेस आर सेंसिटिव to any changes in dividend payout। Share prices are sensitive to any changes in dividend payout। क्यों ऐसा, इसको समझिए आप। इट्स अ मेच्योर कंपनी, so now they have been distributing dividend every year, and now in case you don't distribute dividend and go against your own trend and your own pattern, then the prices may go down। आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ। They are mature company and they are consistently giving dividend every year, and they do not give dividend in certain year, then that's going to put up a question on their position। तो इसीलिए ना देना, अपने खुद के ट्रेंड से अगेंस्ट जाना, वो भी नेगेटिव जाना, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, उससे कंपनी की जो शेयर प्राइस है उस पर इम्पैक्ट पड़ जाता है। अगला लिखो आप ग्रोथ कंपनी। ग्रोथ कंपनी, they they generally declare bonus, they generally declare bonus to offset the dividend requirement of shareholders। They generally declare bonus
टू ऑफसेट द डिविडेंड रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये अपना कैश ऐसे बांट के खत्म नहीं कर देते, बिकॉज इनको कई जगहों पे इन्वेस्ट करना है, बट लोगों की अपेक्षा तो होगी, कुछ तो चाहिए। तो क्या किया जाए, बोनस शेयर रख लो तुम, बोनस शेयर रख लो, उनको मार्केट में बेच देना, वहां से पैसे अरेंज कर लेना। समझ में आया आपको क्या बात चल रही है? यस, ओके गुड। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्निंग इज केप्ट टू मीट इमरजेंसी, small portion of earning is kept to meet any emergency। मतलब ये लोग बहुत ही कम रिटेंशन रेशियो रखने वाले हैं। मेजर क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड पे आउट। A small portion of earning is kept to meet emergency. A small portion of earning is kept to meet any emergency. उसमें लिखो आप, ग्रोथ कंपनी में दिस कंपनी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ग्रेजुअली। जैसे जैसे वो मेच्योर होती जाती हैं तो वो डिविडेंड बांटती जाती हैं ज्यादा। These companies increase the amount of dividend gradually as the profitable investment opportunities start falling. As profitable investment opportunities start falling, ग्रोथ कंपनी जैसे ही कन्वर्ट होने लगती है मेच्योर कंपनी, तो उन्हें पता है कि यार अब इतनी सारी ऑप्शंस रह ही नहीं जा रहा है जहां हम इन्वेस्ट करें, तो वो फिर डिविडेंड पे आउट ग्रेजुअली बढ़ाने लगते हैं। बट जब तक वो ग्रोथ कंपनी है तो वो डिविडेंड पे आउट, कैश डिविडेंड कम ही रखते हैं, एंड दे यूज बोनस शेयर्स, वो कर लेते हैं। हो जाए ये नोट आपका तो मुझे इन्फॉर्म कर दो, फिर डाल, एक बार पढ़ लो फटाफट से, मेच्योर और ग्रोथ कंपनी। अब इसके बाद वी आर मूविंग टू, एक छोटू सी थ्योरी हेडिंग है और उसके बाद प्रैक्टिकल हो जाएगा शुरू। आई थिंक दैट्स डन एवरीवन। मुझे वापस बताओ फटाफट से, डिटर्मिनेंट्स कितने थे अपने पास? हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स वी हैड? देयर वर 7 डिटर्मिनेंट्स। विदाउट लुकिंग इन योर कॉपी जस्ट गिव इट अ थॉट। क्या जब हमारी कंपनी हम डिविडेंड बांटे या ना बांटे, वो जो 7 बातें वो क्या क्या थी जिन पर हमारा डिसीजन बेस्ड होगा? क्या थी वो 7 बातें जिन पर हमारा डिसीजन कहीं ना कहीं बेस्ड होगा, डिपेंडेंट होगा? कैश है या नहीं है? चलो कैश नहीं भी है तो भी बाहर से अगर पैसा अरेंज कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना पड़ रहा है, टैक्सेशन क्या चल रहा है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर बहुत अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो क्यों डिविडेंड बांट के हम पैसे को बर्बाद करेंगे? वील इन्वेस्ट देयर। और नहीं अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो नहीं बांटेंगे फिर, मतलब नहीं रखेंगे, रिटेन नहीं करेंगे और बांट देंगे शेयर्स। और एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, लॉ क्या है, लीगल कंस्ट्रेंट्स, टैक्सेशन की क्या पोजीशन है, इन सब बातों को ध्यान में रख लेना है बस। ठीक है, चल नेक्स्ट लिख लो आप, नंबर 5, पे आउट पॉलिसीज। पे आउट पॉलिसीज, पे आउट पॉलिसीज, पे आउट पॉलिसीज में दो ब्रांचेस बनाओ। पहले लिखो कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी और दूसरा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ओके,
तो बेटा जब टर्म आ रहा है ना कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो टर्म्स बड़े क्लोज है, कांस्टेंट और स्टेबल मोर और लेस it's the same. Then how are the two different? So you need to remember the minute difference between the two. When it is constant dividend policy, the amount of dividend that is to be paid every year remains more or less the same. But whereas when we talk about stable dividend policy, then the payout ratio, that remains more or less the same. Okay, तो आप लिखो इसमें जाके constant में वैल्यू, मतलब जो भी रुपए में है, वैल्यू जो भी रुपए में है, it remains it remains same for a few years. वैल्यू डिविडेंड की जो रुपए में है, it remains same for a few years. For a few years. सेम 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 चलता रहेगा. ठीक है, चलिए इसमें आप लिखो, जैसे मानो 5 रुपए का डिविडेंड बट रहा है, 5 5 5 5, साइड में लिख लो फॉर सम इयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग, कमाई वमाई कितनी भी हो रही है, ऊपर जा रही हो नीचे आ रही हो, हमें कांस्टेंट डिविडेंड पे करना है, कांस्टेंट डिविडेंड पे करना है, सेम टू सेम एवरी ईयर फॉर सम इयर्स, ऐसे ही चल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग, कमाई वमाई जो कुछ भी हो. नीचे जाके आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, ड्रॉ ग्राफ, उसमें आप ऐसा लिख लो, भले ईपीएस ऐसा कुछ हो रहा है, ईपीएस मतलब कमाई पर शेयर, कभी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, और बढ़ रही है, फिर थोड़ी घट रही है, फिर और बढ़ रही है. तो कमाई कुछ भी जा रही हो आपकी, अर्निंग पर शेयर कुछ भी हो, आपका जो डीपीएस है, डिविडेंड पर शेयर, इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम, then it may increase, then it's going to remain constant for some years, then it may increase. तो बेसिकली कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी हो गई है या कांस्टेंट पे आउट पॉलिसी हो. तो उसमें आप साइड में लिखोगे इट मे चेंज, बट इट मे चेंज, ऐसा नहीं है कि डीपीएस आपका चेंज नहीं हो सकता, डिविडेंड पर शेयर वो हो तो सकता है, बट द चेंज डीपीएस विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स. अब जो वो नया है वो अगले कुछ सालों तक वही चलेगा, फिर जो नया है वो अगले कुछ सालों तक वही चलेगा. It may change, but the changed DPS will continue for next few years. ऐसा नहीं कि बदलेगा ही नहीं, but एक बार जो opt हो जाता है, that continues for few years, and then they may plan to change it. That's done. चलो बेटा, अब हमारे पास ये हेडिंग आ जाती है, बस नाम भर लिख दो फटाफट से नाम लिख लो. सिक्स्थ हेडिंग डाल के डिविडेंड डिसीजन मॉडल या थ्योरीज, डिविडेंड डिसीजन मॉडल या थ्योरीज, डिविडेंड डिसीजन मॉडल या थ्योरीज. उसमें आप बना लो 4 ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस. पहला लिखो आप एमएम अप्रोच, इसमें भी एमएम अप्रोच मौजूद है. पहला लिखेंगे आप एमएम अप्रोच, दूसरा लिखोगे वॉल्टर वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल, अगला गॉर्डन्स मॉडल, फिर लिंटर मॉडल. एमएम अप्रोच, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और लिंटर मॉडल. एमएम अप्रोच, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, लिंटर मॉडल. तो यू हैव गॉट 4 डिफरेंट अप्रोच, जहां हम डिविडेंड का कैलकुलेशन कितना क्या होना चाहिए वो सीखने वाले हैं. Is that done, all of you? चलिए, तो इससे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में शुरुआत ऑफ आर प्रैक्टिकल पार्ट. थियोरी पार्ट जो है वो मेजरली अपना हो चुका है कंप्लीट. क्या बोल गया बेटा? उसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको तुम लोग नोट कर लेना, समझा तो मैंने ब्रीफली दिया ही था. स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में मैंने क्या बात बताई, परसेंटेज क्या रहने वाला है हर साल, सेम सेम सेम.
तो अगर 50% दे रहा है तो 50-50-50, 20 दे रहा है तो 20-20-20, आपकी जितनी भी कमाई होगी उसका 50% चला जाएगा हर साल या 20% चला जाएगा, दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, इफ यू आर राइटिंग राइट नाउ, यू राइट, आई विल वेट फॉर अ मिनट, यू राइट फटाफट से। परसेंटेज ऑफ पे आउट रेशियो रिमेन स्टेबल, percentage of payout ratio remains stable. Maybe the payout ratio is 50%, so that's going to remain same. क्या इसमें value of dividend will remain same? No. Value of dividend will not remain same. Value of dividend will not remain same क्योंकि एक साल कमाई 100 है, उसका 50% 50 गया। एक साल कमाई 1000 है, उसका 50% 500 गया। तो value of dividend doesn't remain same every year. It is basically dependent on EPS. It is basically dependent on EPS. तो जो हमारा प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, मतलब बेसिकली calculation based, we'll be beginning from tomorrow, that is in the next class.